One more minute, we will wait. Now we will start the class. Okay. Whoever have joined. ठीक है जी, स्क्रीन आ रहा है, सब लोग देख लो। क्लियर आ रहा है? ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगा तो हम लोग क्लास में बात करेंगे। आवाज फैन का आ रहा है? अब आवाज स्पष्ट हो रहा होगा। So now today we will move forward. Yesterday simply we had solved some of the numerical based on magnification and reflection of light. So today we will have discussion regarding refraction of light. ठीक है जी, रिफ्रैक्शन स्टार्ट नहीं किया था क्लास में भी और कल का ऑनलाइन में भी नहीं। तो आज का टॉपिक है हमारे लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके पहले जो रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे इसमें मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर, प्लेन, some of the numerical have been solved and we will again continue with that numerical every day, but we have to move forward with another phenomena associated with the light, that is the reflection of light. So first of all we will start the refraction, which is also the property of the light. So reflection was also one of the property of light and it is also the property. So we have to compare then how it is different from that. So simply we have to create a difference so that we can have a discussion regarding the refraction. बीच बीच में ज्वाइन करोगे तो डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, so before starting refraction we will see that this is also the case of light, one of the property of light, and simply we all have gone through the topic refraction. Refraction सारे बच्चे पढ़ लिए क्लास 8 में। अभी हमारा स्टार्टिंग है बेस, 8 से उठेंगे 10 पर पहुंचेंगे। अंतर कहाँ आएगा? ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल्स में पहुंचना हमारा लक्ष्य है, मेन वही है, थ्योरी सेम है, कोई नया चीज इसमें नहीं है, थोड़ा बहुत होगा मॉडिफाइड वे में हम लोग पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड वे। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं
कि इसको क्लियर करेंगे रिफ्लेक्शन के साथ साथ पढ़ने पर। तो ध्यान से देखेंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि रिफ्रैक्शन में क्या शो करना है। तो रिफ्लेक्शन भी पैरेलल पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन और यहां लिखते हैं रिफ्रैक्शन। So during the reflection phenomena, we have seen the light ray striking a surface return or bounces back. Means from which medium it is coming, again it returns in the same medium. So there is no change of medium. Means light is moving in a single medium. So here, in the case of reflection, single medium is required. Single medium is required. Take care. And for the phenomenon of reflection, you have seen that the nature of the surface must be opaque, so that light falling on that return back. It should not be transparent. In the case of refraction, it should be transparent. So here the nature was also opaque. Opaque surface or opaque object on which light simply fall or incident. So these are the points which you have seen. In the case of refraction, what will happen? Instead of opaque, it will be transparent. डेफिनेशन पर पहुंचा रहे हैं, ये नहीं कि सर एक लाइन में लिख दीजिए डेफिनेशन हो गया। तो बार बार हम बोलते हैं वो एक लाइन लिखने के लिए 100 लाइन पहले समझना है, तब वो एक लाइन हम लिखेंगे। क्यों? ताकि रटना ना पड़े, सिंपली हम उसी में से निकालेंगे कि सर ये तो हम लोग जानते हैं। नाउ इट इज सिंगल मीडियम हेयर। The refraction will only occur whenever there will be change in the medium. So at least 2 mediums are required. Minimum mediums required is 2. Third, actually light is moving in the single medium, so its speed remains same. The speed of light is equal to constant. Here what will happen? The speed of light changes or varies. Due to change in medium, there is also change in the corresponding speed. Next, what happens? Here you have seen that the light follow a straight line path whenever it passes through the same medium. So a straight line path is followed by light. Take care. And here this straight line will be changed. What happens? So suppose this is the boundary of separating two mediums. इधर एक मीडियम है जी, इधर अलग है। लाइट जब तक एक मीडियम में चल रहा है स्ट्रेट चल रहा है, जैसे ही यहाँ पर आएगा स्ट्रेट के जगह पर ये चेंज मीडियम के कारण बेंड करेगा। This bending is called reflection. So now the path is not straight. So here a straight line path, here what will happen? Bending, or you can say deviation of light ray from its path. ये समझ लो, इसी से सारे प्रॉपर्टी सारे डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगे, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। So now you know all the things regarding reflection. Now you have reached at reflection. So what will be the meaning of reflection? Here we have simply made the comparison between these two phenomena. Both are the properties of the light. Both are the phenomena associated with light. We have just made the differences so that we can have an idea how it is different from that. Clear है ना? Reflection पढ़ लिए थे, इसमें देखें
कैसा ऐसा होता है सर, इसमें ऐसा होने जा रहा है, यानी इसके रिस्पेक्ट में इसमें ये हमको डिफरेंस मिलेंगे। अब इसको हम हटाएंगे, ये एक समझाने के लिए था जो कि हमारे नॉलेज के अनुसार था, कि हम जानते हैं सर। अब आ जाओ अब रिफ्रैक्शन पर पहुंचे कि रिफ्रैक्शन का मीनिंग बोले कि बेंडिंग, कि सर इसी बेंडिंग का नाम आप दिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और बेंडिंग को भी क्लियरिफाई करना है। बेंडिंग मींस व्हाट, हम कुछ चीज चाहेंगे वायर, जैसे मान लो जी कि मेरे हाथ में ये कोई वायर है, इसको ऐसे बेंड किए, फिर सीधा हो गया, नाउ इट इज बेंट। ये बेंडिंग हो रहा है कि इसको बेंड, तो उसी बेंडिंग का नाम दे रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल सा कि कोई मटेरियल है, कोई वायर है, कोई मेटल है, तो इसको हम इस तरह से बेंड कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप में बेंड कर रहे हैं, ये बेंड। तो यहाँ पर क्या लाइट भी कोई मटेरियल है? कैन इट बी बेंट? लाइट को मोड़ सकते हैं? अगर हम लाइट को होल्ड करेंगे तब तो मोड़ेंगे ना, तो लाइट को तो होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर बेंड कैसे कर रहे हैं सर? उसी बेंडिंग का नाम आप दे रहे हैं। तो क्लियर होता है कि ये बेंडिंग का मीनिंग जान लो। जैसे ये लाइट जा रहा है सीधा, इसको मान लो कि यहाँ से मीडियम, ये सीधा जाना था, ये यहाँ से ऐसे बेंड। तो बेंडिंग का मतलब डेविएशन ऑफ द लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ। इसको इससे जाना था सीधा, ये एक एंगल पर डेविएट करके इधर से चला गया, इधर ना जाकर के इधर चला गया, तो ये अपने पाथ से डेविएट करेगा। दैट डेविएशन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, and why it has occurred, that is due to change in medium, that is due to change in speed। अभी और कॉजेज पढ़ेंगे। तो इस बेंडिंग का मतलब दूसरी भाषा में डेविएशन। लाइट इज नॉट ए मैटर और ऑब्जेक्ट that it can be bent. This is the path. There is deviation of its path, bending of its path, not of light. So in short, you can say bending. Meaning of refraction of light, bending. So how will you define now the bending of the light ray when it travels from one medium to another? You have to add the cause so that complete information can be given. In short, you can say, sir, bending is called refraction of light. Okay. But whenever you are asked to define the term refraction, then you will write the bending of the light ray from its original path when it travels from one medium to another. It's called refraction. Clear हो रहा है? Bending कब हो रहा है? When there is change in medium, when there is change in speed. ये हमारा हुआ डेफिनेशन। ये साफ साफ हम लोग लिखेंगे कि द बेंडिंग of the light ray from its path when it moves or travels from one medium to another is called refraction of light। ये डेफिनेशन हुआ, देख लो। डेफिनेशन पे हमको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, डेफिनेशन सब जानते हो, सारे बच्चों को आता है। हमारा टारगेट है उसको समझाना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देख लो, कोई दिक्कत है अभी तक? वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, इफ एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग यू कैन आस्क। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलना है। डेफिनेशन एक लाइन का है, लेकिन उसी एक लाइन को क्लियर करने में हम लोग को इतना टाइम लगा, ताकि अच्छे से समझ सके कि बेंडिंग का मतलब क्या है, और जो डेफिनेशन तुम लोग लिखते हो वो कैसे लिखें। केवल बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, नो,
कभी कभी लिख देते हो सारे बच्चे, क्लास 8 में कुछ कॉपियां देखे थे कि व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि पूर्णतः गलत है। फिर से सुन लो, तुम लोग लिखते हो लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो गलत है। लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाता है, इसको रिफ्रैक्शन नहीं कहते। When it travels from one medium to another, this bending takes place. That bending is called reflection. तो केयर करना है, बेंडिंग वर्ड रखेंगे और ऐड करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इसको अपने डे टू डे लाइफ में कोई कॉमन फिनोमेनन्स हैं उससे हमको रिलेट करेंगे। सर वेयर वी हैव ऑब्जर्व्ड the common phenomena of reflection of light. So many more phenomena you can observe in your atmosphere. Natural phenomena भी है बहुत सारे, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन विच अकर्स इन आवर एटमॉस्फेयर, तो वो नेचुरल फिनोमेना है, बहुत सारे हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। ब्लू कलर ऑफ स्काई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट में सूरज लाल दिखता है, वो सब फेनोमेना है रिफ्रैक्शन का, रियल फेनोमेना नहीं। तो हुआ कि सर ये जो ऑब्जर्व करते हैं एक्चुअली ये रियल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ द मीडियम, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, वेरिएशन। अब आएंगे कि और कॉमन फेनोमेना। बहुत सिंपल एक क्वेश्चन था कि व्हाई डज पेंसिल अपीयर बेंट when it immersed in water। क्वेश्चन था कि कोई स्टिक या पेंसिल को जब पानी में डालते हैं तो वो टेढ़ा दिखता है। ये बहुत सिंपल और कॉमन फेनोमेना था। तो रीजन वही देना है कि अगर हम ये कोई कंटेनर है, यहाँ तक पानी का, अगर ये पेंसिल है तो ये जो हिस्सा है the part which is inside the water, उसमें ध्यान से देखना कि टेढ़ा कौन हिस्सा दिखेगा? जो पानी के अंदर है। बाहर वाला टेढ़ा क्यों नहीं दिख रहा? तो द ऑब्जर्वर, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वी आर आल्सो इन एयर, दिस पार्ट इज आल्सो इन एयर, मीडियम इज सेम, सिंगल मीडियम इज देयर, नो रिफ्रैक्शन। जब पानी वाले हिस्से को देखते हैं, यहाँ वाटर एक मीडियम हो गया, हम एयर में है, तो दो मीडियम हो गया। लाइट इज ट्रेवलिंग इन टू डिफरेंट मीडियम and change in medium causes bending, that causes the change in shape, so we can say it appears bent। पेंसिल निकालोगे फिर सीधा रहेगा, स्टिक निकालोगे सीधा होगा, पानी में डालोगे तो दैट इज नॉट रियल फिनोमेना, दैट इज appearing। why? due to variation in speed of light due to change in medium। so further we will explain how it is happening when we will learn some rules or laws related to refraction। और भी फेनोमेना मिलेंगे। अभी हम लोग और पढ़े थे कि किसी खाली ग्लास में कंटेनर में कॉइन रखते हैं, तो व्हेन वाटर इज पावर्ड द कॉइन अपीयर्स टू फ्लोट। तो शुरू में ग्लास में था, मीडियम नहीं था, वाटर आया, रिफ्रैक्शन हुआ, तो उसका वर्चुअल पोजीशन बना। और भी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारे फेनोमेना है और बहुत सारे बच्चे जानते हैं। Only you need to relate with this phenomena। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे अपर क्लास जानते हैं, होता क्या है कि अभी तक जो जानते हैं अब हर एक का कॉज जानना, उसको रिलेट करना कि अच्छा दिस इज द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग और दिस फेनोमेना इज रिलेटेड विद दैट। एक्चुअल फिजिक्स है कि कोई इधर उधर की बात नहीं पढ़ानी, उसको रिलेट को रिलेट करना है। जैसे ही को रिलेट कर दिए दैट बिकम्स इजियर और सिंपल। तो अब आते हैं कि सर अभी मीडियम चेंज हुआ तो लाइट का स्पीड चेंज कर दिया, इसका मतलब लाइट के स्पीड में भी वेरिएशन होता है? तो बिल्कुल होता है। तो जरा देखें कि लाइट का ट्रैवलिंग करने का जो वे है वो कैसे है। तो स्पीड ऑफ लाइट, जैसे ही लाइट पर पहुंचते हैं, हम लोग पढ़े थे कि कंपेयर करते हैं, लाइट को कंपेयर किए थे साउंड से, साउंड को जब पढ़ाए थे तो कंपेयर किए थे लाइट से।
वेव के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव, सो दैट वी कैन हैव अ डिफरेंस। यहाँ पर देखो स्पीड ऑफ लाइट पढ़ना है, इसके पहले जरा साउंड पर भी आ जाओ। यहाँ हम स्पीड ऑफ लाइट पढ़ेंगे, यहाँ साउंड पढ़ेंगे। तो साउंड और लाइट दोनों में जरा बता दो कि जो ट्रेवल करता है साउंड मीडियम में, अभी मीडियम की बात कर रहे हैं क्योंकि बिना मीडियम का साउंड विल नॉट ट्रेवल, लाइट ट्रेवल कर जाएगा लेकिन ये ट्रेवल नहीं करेगा। तो अभी हम बात करें किसी भी मीडियम के लिए जिसमें ये दोनों ट्रेवल करेंगे, हाउ देयर इज अ वेरिएशन ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड और लाइट। जैसे V फॉर स्पीड, S for solid, liquid or gas. Solid, liquid, gas. Light travels in all three mediums: solid, liquid, gas. Similarly, sound also travels in all the three mediums: solid, liquid, gas. इसको ऑर्डर में बताओ कि साउंड का मैक्सिमम स्पीड किसमें होता है, कोई बच्चा बताओ। लाइट ट्रेवल, साउंड, साउंड का बता रहे हो, साउंड में फास्टेस्ट, तो ये ऑर्डर सही है। साउंड में फास्टेस्ट और गैस में स्लोएस्ट, इज इट करेक्ट? यस सर। इधर बताओ लाइट में, लाइट का ऑर्डर बता दो। नहीं, अभी हम वैक्यूम की बात नहीं कर रहे हैं जी, अभी बात कर रहे हैं मीडियम की। मीडियम, वैक्यूम इज नॉट ए मीडियम। ज्यादा, इसमें ज्यादा, ये ऑर्डर सही है। सॉलिड मतलब हुआ जी ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो लाइट उससे पास हो रहा है ना, तो स्पीड कुछ होगा ना। सॉलिड मतलब कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल लो, ग्लास तुम्हारा विंडो पैन है तो सॉलिड ही ना है। तो उस आधार पर हम ये लिखे हैं। अब जरा इसका कोई कहेगा कि सर आप पूछ के लिख दे रहे हैं, सही है कि गलत कंफर्म कीजिए। तो पहले इधर आ जाओ, साउंड पर आ जाओ। हम लोग स्पीड ऑफ साउंड एयर में पढ़ते हैं 330 मीटर पर सेकेंड। 331 भी होता है, 343 भी होता है। एयर हो गया गैस, गैस भी सबसे कम है। जब वाटर लोगे तो उसमें 1498 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्स 1500 मिलता है। तो देखो एयर हो गया गैस, गैस से वाटर में जाता है, तो गैस से वाटर में जाता है, सही लिख। और सॉलिड जब लोगे एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, सब में अलग अलग साउंड करता है, किसी में 1000 के आसपास, किसी में 5700 समथिंग। तो इसका मतलब जो हम लोग ये पढ़े हैं उसके आधार पर ये सही। और इधर होगा कि सर इधर, इधर भी एक एग्जांपल ले लो। गैस हो गया एयर, एयर में तुम पढ़ा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये वैक्यूम की आइडेंटिकल, वैक्यूम में भी और एयर में। हम एयर ही ले रहे हैं क्योंकि कहेंगे सर मीडियम है एयर, और वैक्यूम में था फास्टेस्ट मैक्सिमम, एयर में भी हो गया मैक्सिमम। लिक्विड में और कम, लिक्विड में जब बात करते हो तो 2.25 × 10⁸ कोई सॉलिड उठा ले तो ग्लास में तो 2 × 10⁸, तो इससे ज्यादा, इससे ज्यादा है, ये ऑर्डर भी सही है। अब आते हैं कि सर मान लीजिए कि ये तो आपको याद था तो इसका अर्थ लिख दिए, नहीं याद रहता तब सर, ठीक है जी, मान के चलो कि ठीक है हमको याद था, इसमें देखो इसमें कम इसमें ज्यादा है, नहीं याद होता तब ये हम ऑर्डर कैसे मैनेज करते हैं? तो बहुत सिंपल है। साउंड का जो प्रोपगेशन पढ़े थे हम लोग क्लास में, याद करो, साउंड को बोले लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और पढ़े थे कि हाउ डज इट प्रोपगेट, साउंड कैसे प्रोपगेट होता है किसी भी मीडियम में। याद करो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के रूप में पढ़े थे कि हाउ डज इट प्रोपगेट, कैसे ट्रेवल करता है। तो गैस का बात करो, एयर में, गैस में, मीडियम ऐसे पार्टिकल,
और ये अगर सोर्स है, यहाँ से साउंड को इधर जाना, तो हमारी आवाज तुम्हारे तक क्लास में पहुंच के पीछे तक कैसे? विद द हेल्प ऑफ द पार्टिकल्स of the medium present in class, and the medium is air. So with the help of the particles of the air, sound travels. कैसे? तो air है, gaseous में particles are far away from each other, intermolecular space is much more. तो ये एनर्जी लेगा, इसको देगा, फिर वापस अपनी जगह पर आएगा, ये फिर लेगा, इसको देगा, फिर वापस लौटेगा। तो यही बोले थे हम लोग, बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। पार्टिकल दूर दूर से इसको एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए मूव करना होगा। देखिए सॉलिड में क्या है कि पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, दे आर मच क्लोजर टू ईच अदर। अगर इसको एनर्जी मिला तो अपने अगले वाला को तुरंत ट्रांसफर किया, वो अपने आगे वाले का, तो इजीली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। तो सॉलिड में क्या हुआ, आसानी से ट्रांसफर हो रहा, लॉस ऑफ एनर्जी कम हो रहा है, इसलिए स्पीड फास्ट है। तो इस आधार पे भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, और इसके आधार पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दोनों। लाइट में आ जाओ, वैक्यूम में मैक्सिमम था क्योंकि वहां पर देयर वाज नो एनी ऑब्स्टेकल। लाइट को ट्रेवल करना था तो वहां पे पार्टिकल्स के मीडियम उसके लिए ऑब्स्टेकल बन रहे थे। ये मीडियम प्रेजेंट है पार्टिकल, तो इसका रास्ता में ऑब्स्टेकल थे, ये नहीं है तो ये आसानी से मूव करेगा। तो जहां पार्टिकल्स हैं वहां पर स्पीड स्लो डाउन करेगा, जहां पार्टिकल्स नहीं है इट विल ट्रेवल फास्टर। तो ये वैक्यूम में हमारा मैक्सिमम था 3 × 10⁸। अब आ जाओ, ये स्पीड ऑफ लाइट जो हम लोगों को पढ़ना है, किस किस में पढ़ना है? तो पहले है वैक्यूम, और आइडेंटिकली है, इसमें है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा है वाटर, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा है ग्लास, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और चौथा नंबर पे हम लोग का था डायमंड। ऐसा नहीं कि यही घर पढ़ना सीखता है, और भी मिलेंगे, साइड बुक्स वगैरह में उठाओगे तो ट्रांसपेरेंट मीडियम मिलेंगे इन विच यू हैव टू नो, लेकिन ये 4 सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे। वैक्यूम और एयर, क्वेश्चन आता है कि लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच मीडियम, लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच मीडियम, क्वेश्चन का जवाब दो, बोलो जी। इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, बोलो कोई बच्चा, और कोई जवाब है किसी के पास? हाँ, वैक्यूम, 2 जवाब, और किसी के पास है कोई जवाब? वैक्यूम। अब ध्यान से मेरा क्वेश्चन को सुनना, हम बोले थे कि इन विच मीडियम, मीडियम बोल दिए ना, तो मीडियम बोले तो उसमें वैक्यूम नहीं होगा, वैक्यूम इज नॉट ए मीडियम ना, इट इज एब्सेंस। तो गौर से सुनना क्वेश्चन, तो हम बोले थे कि क्लास 10 में आते आते अब धीरे धीरे सारे ऑप्शन सही लगेंगे, जो बेस्ट ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएंगे। इसलिए वी हैव टू गो फॉर ऑल द ऑप्शंस, इन्हें कि ए नंबर देखे टिक मार दिए सही है, तो नहीं, बी भी देखो, सी भी देखो, डी भी देखो, देन यू हैव टू डिसाइड वेदर इट विल बी ए, बी और सी और डी। हम क्वेश्चन किए कि इन विच मीडियम, मीडियम बोले तो वैक्यूम खत्म, एयर हो गया। हाँ, ये बोलते कि लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन डॉट डॉट डॉट, तब होता वैक्यूम। हम लोग दोनों को बराबर लिया है, वैक्यूम में मैक्सिमम है, एयर में लगभग उतना के बराबर 2.99 × 10⁸, लगभग है। लेकिन जब दोनों में तुलना होगी कि दोनों में से किसमें ज्यादा है सर, वैक्यूम, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज इन वैक्यूम। तो चलो ये याद कर लेंगे, क्यों याद कर लेंगे, ये हेल्प करेगा हमको आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने में।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स है उसमें मदद करेगा, डायग्राम बनाने में मदद करेगा, रे डायग्राम ड्रॉ करोगे ऑन द बेसिस ऑफ। तो इसी के आधार पे हम लोग लिखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में सबसे ज्यादा है, यानी कि गैस, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सबसे ज्यादा है। नाउ दिस भी इज ओनली फॉर लाइट। अब यहाँ साउंड से मतलब नहीं है, एक को हम लिख देंगे, मान लो कि इसको भी कर दे रहे हैं कि दिस vs मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन सॉलिड नोटेशन। एक आइडिया हो गया कि ये अब यहाँ दिख नहीं रहा है सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंपेयर करके। तो ये स्पीड में जो वेरिएशन हो रहा है क्यों हो रहा है, दैट इज ड्यू टू चेंज इन द मीडियम। सो व्हेनेवर लाइट विल चेंज its medium or travels from one medium to another, there will be variation in its speed. Variation means whether it will increase or it will decrease, दोनों होंगे जी। इधर से इधर जाएगा तो बढ़ना, इधर से इधर आएगा तो टेक केयर, ये याद रखना। अब इसको देखते हुए आया कि सर बार बार टर्म आ रहा मीडियम मीडियम मीडियम, तो व्हाट इज मीडियम एक्चुअली, व्हाट इज मीडियम, एनीबॉडी? मीडियम क्या है जी, डिफाइन करो, बोलो व्हाट इज मीडियम, टू विच लाइट प्रोपगेट। ठीक है, वेरी गुड। मीडियम हम उसी को बोलते हैं कि अभी लाइट से रिगार्डिंग बात करें तो लाइट चल रहा है एयर में, तो यहाँ एयर को मीडियम कर दिया, क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू लाइट जो है प्रोपेगेट कर रहा है, प्रोपेगेट मींस मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो सही जवाब है। अब ये डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड हो गया। अब आते हैं कि सर उसका बेसिक कॉज जरा आप बताइए कि व्हाई दिस बेंडिंग इज टेकिंग प्लेस। बेंडिंग मींस रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन में बोल दिए कि मीडियम। तो जो डेफिनेशन हम लोग दिए थे उस डेफिनेशन में ही उसके कॉज हिडन है। तो ये तुरंत इसके पढ़ने के बाद हम लोग को पढ़ना है कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कारण है रिफ्रैक्शन होने के कारण, तो बुक में एक कारण दिया है और उसी को हम घुमा फिरा के 2-3 पार्ट में बता दे रहे हैं। हर बार बोल रहे हैं कि हमारे पास 5 पॉइंट रहेंगे तो 2 या 3 लिखना, तो बस 2-3 से 5 बनाना मुश्किल होता है, तो हम उसी 2 को ही, एक को ही पढ़ा करके 5-6 बना दें। और तुम भी सीख लो, अभी आया था इसी बार क्वेश्चन एक सेट में कि राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन, याद करो। तो हम लोग 5-6 पढ़ लिए थे, 4 आ गया। नॉर्मली ये 2 नंबर के क्वेश्चन में 4 पॉइंट नहीं पूछता है, लेकिन आ गया तो लिखना तो था। तो कैसे हम उसी से नंबर लेना है, उसी से लिख लेना है। तो बच्चा को सिखाया गया था कि डायरेक्ट 2 पॉइंट को 1 में मत लिखना। अभी तक लिखते थे कि द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, 1 पॉइंट पर। अब वहाँ 4 कैसे करेंगे, द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, 1 पॉइंट। द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, 2 पॉइंट हो गया। तो वर्चुअल और इरेक्ट को सेपरेट कर दिए, 2 पॉइंट भी क्रिएट है, और कोई नया चीज नहीं है, जो जानते तो। तो सिमिलरली यू हैव टू क्रिएट। पहला कारण देता है रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग। बेंडिंग कब हुआ, जब मीडियम चेंज हुआ। पहला कारण हुआ ड्यू टू चेंज इन मीडियम। मीडियम जब भी चेंज होगा रिफ्रैक्शन विल अकर। तो ये डेफिनेशन में था लाइट बेंड्स या बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मीडियम चेंज। तो दूसरा बोले कि व्हेनेवर देयर विल बी चेंज इन मीडियम देयर विल बी चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो अगला पॉइंट हो गया चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो तुरंत हो गया कि सर मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज होगा। व्हाई देयर विल बी चेंज इन स्पीड, तो मीडियम चेंज हुआ। तो मीडियम चेंज होने से क्या हुआ, क्या एक्चुअली व्हाट हैपेंड सो दैट देयर इज चेंज इन द स्पीड। Change means in some case it can increase, in some case it can decrease. So the third is important point which include
इंक्लूड्स बोथ इन इट। अब ध्यान देना, इसको हम बोल रहे हैं कि ये अलग मीडियम है, फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम, ये अलग अलग है। एक्चुअली यहाँ से लाइट इसमें जा रहा तो कह रहा है कि मीडियम चेंज है इसलिए स्पीड चेंज, तो ये अलग मीडियम क्यों है, ये स्पीड चेंज हो गया। स्पीड चेंज हो क्यों रहा, तो बोलता है कि एक जो टर्म पढ़े थे डेंसिटी, डेंसिटी याद करो मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक सिंपल टर्म था डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। तो उस मास पर यूनिट वॉल्यूम में वर्ड था कि नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम अगर हम लेते हैं तो देखते हैं उधर डिसाइड्स द डेंसिटी, उसी से डेंसर और रेयरर सब आगे जाएंगे। बोलता है कि इसका जो डेंसिटी है, हम लाइट के रिलेटेड बात कर रहे हैं इसमें वर्ड जोड़ देंगे ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी। डेंसिटी बोलते हैं तो इसका डेंसिटी हो गया, इसका हो गया, लाइट इसमें ट्रेवल नहीं करेगी। जैसे ही ऑप्टिकल वर्ड यूज करते हैं सर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी लाइट से रिलेटेड है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ऑप्टिकल माने लाइट से रिलेटेड, तो इसका डेंसिटी तो वेरिएशन है, जिसके कारण इसमें स्पीड अलग, इसमें स्पीड अलग। इसके कॉमन एग्जांपल्स हम लोग देते हैं कि बहुत सिंपल है कि यू आर सिंपली वाचिंग द स्पीड ऑफ द लाइट and you are observing it is moving with constant speed. Whenever there is change in speed, you are just watching the speed. Whenever it changes its speed, you are suddenly say now the medium has changed. जैसे हम मान लो चल रहे जी प्लेन सरफेस पे, आंख बंद हिला, प्लेन सरफेस पे आए मूविंग, चलते चलते अचानक सैंड आ जाए, बालू आ जाएगा, तो क्या जिस स्पीड चल रहा है वो मेंटेन होगा, नहीं होगा। Without watching there is a variation in speed, या बालू पर चल रहे चलते चलते अचानक कंक्रीट सरफेस आएगा तो क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। अब कंक्रीट से बालू पे जाएगा स्पीड घट जाएगा। तो ये हुआ कि उसके डेंसिटी में वेरिएशन के आधार पे कि सर वो एक अलग तरह का नेचर का सरफेस था, ये एक अलग नेचर का सरफेस है, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। तो तीसरा जो पॉइंट हो गया